to the nice. Hmm? गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सभी को। सिर्फ 1 मिनट में आज के सेशन की शुरुआत कर देंगे। Few more participants are joining today. Just one request, just let me know which language do you think you're comfortable with. We can do this in both English, Hindi mix. So you can just put this in chat and the most comfortable language we will go ahead with. हिंदी इंग्लिश मिक्स, ओके फाइन फाइन, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। मिक्स, ओके, ठीक है। आई थिंक सो ऑलमोस्ट एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ इंग्लिश हिंदी, तो एक मिक्स लैंग्वेज में आज ये सेशन ले लेते हैं। ग्रेट, more people are joining regularly, so let us just wait for 1 minute and we will start for today. So welcome everyone to today's interesting session of the anatomy of the human spiritual system. ये सेशन इंटरेस्टिंग इसके लिए है क्योंकि आज का जो इंट्रोडक्शन सेशन है वो हमारे लिए एक बेसिक ये समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर बॉडी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, नो डाउट अबाउट इट। बट आफ्टर दिस द पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड अस टुडे, who who consent to, they can certainly in this week itself we will be arranging 3 days of a 3 days meditations workshop, approximately 1 to 1.5 hours every day for 3 days. और कुछ important basic practices हैं जो हम इसमें ये practice जो है वो करने वाले हैं. We are going to do this practices also. Okay, so most importantly, I would like to tell this here that this is a very huge delusion. Okay, ये बहुत ही बड़ा delusion हमारे यहाँ पर होता है. वो delusion, we carry this delusion with us every day with our lives. Now what is this delusion? This delusion is that every day when I go and stand in front of a mirror, है ना, because every day we do that, we go and stand in front of the mirror. हम सामने जाते हैं और आईने के सामने जाके खड़े हो जाते हैं. And when we do that, we start realizing every day we are imposing this upon us, that we start realizing that who am I? If I say who am I, मैं कौन हूँ, तो मैं ये शरीर हूँ और मैं ये मन हूँ. Who am I? I start saying unknowingly, subconsciously. Okay, subconsciously I keep on telling myself this, which is not even a fact.
Who am I when I say I am body and I am the mind. I cannot see the mind in the mirror, but I can certainly see the body in the mirror. And this is what we keep on reimposing upon ourselves again and again, every day. So whatever age that we have today, imagine the number of days we have been reimposing this notion upon us, upon our mind, every day, every minute, that what am I? I am this body, I am this mind. Unfortunately, what happens is we do not realize what we really are made up of. So I thought before taking these basic meditation sessions also for this group, let us first understand, have an introduction about what am I really made up of. Because when I think this is the flesh, then I know I'm made up of bones. Then I know that I have two eyes, I have one nose, I have 2 ears, I have all this that I carry with me, and this is what I am. This is what walks and this is what speaks. This is what does everything. This is what I am. ये इस प्रकार से हमेशा हम इस बात को सोचते रहते हैं. We keep on think about this. But a very important fact is that what we see, what we perceive, is not the real me. What I see and what I perceive is actually only a fraction of who I am. लेकिन मैं मूल रूप में कौन हूँ और मैं मूल रूप में क्या हूँ, और मेरा शरीर जो है, my entire spiritual system, when I say forming of this spiritual system, how is it exactly formed of, what is it formed of? I need to understand exactly the building blocks first. I need to understand the most fundamental building blocks of my spiritual system, and then I need to understand what are the tools and what are the instruments जो मेरे अंदर हैं, मेरे अंदर सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं. They are hidden, okay? They are very smartly hidden. Whoever has made this human system, these systems are so smartly hidden that getting in touch with these systems is next to impossible, is almost next to impossible. That is why regularly we need some or the other form of guidance to get in touch with this spiritual system of ours. And thus there are certain ancient and modern meditation methods, there are yogic methods, there are several different types of methods that are existing that help us to get connected, that help us to get in touch with who I am and what I'm really made up of. So before that, before we move into the details of this entire system, okay, we'll have a very brief session. But before we move to this, let us take support of some fundamental fact. Okay, थोड़ा सा एक मूल आधार हम इसका देते हैं. साइंस आर साइंस, ओके, जो हमारी परंपरा है ना, हमारी मूल संस्कृति है, ठीक है, जो ये आपको सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आधार जो है वो हमारे सांख्य दर्शन के आधार से मैंने लिया है. ठीक है, मैं 2 मिनट आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मेरा शरीर है वो किस प्रकार बना हुआ है, जब मुझे ये समझना है, तो मुझे जो मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स है, जो सबसे मूल तत्व हैं, कितने होते हैं, तो सांख्य दर्शन के हिसाब से, हम सब लोगों ने सांख्य दर्शन के बारे में तो सुना होगा कि जो हमारे शट दर्शन है, 4 वेद हैं, 10 मुख्य उपनिषद है, 108 उपनिषद है और 6 दर्शन है. इसको मिलाकर, और जो 18 पुराण है, इसको मिलाकर क्या बनता है, इसको मिलाकर हमारा चतुर्दश विद्यास्थान, which is the Chaturdasha is 14 Vidyasthan, which means that 14 different types of Vidyas that were in ancient times taught in India. जो हमारे भारत के संस्कृति में गुरुकुल परंपरा में जो उपासनाओं के साथ में सिखाया जाता था, मैं उस चतुर्दश विद्यास्थान की बात कर रहा हूँ. तो उस शट दर्शन के साथ में ही जो एक दर्शन है जिसे सांख्य दर्शन भी कहा जाता है, जो कपिल मुनि ने लिया था. तो मैं इसके डिटेल्स में तो यहाँ पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इसके आधार पर आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पर बताऊंगा बिफोर वी गेट इनटू फाइनर डिटेल्स ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टम. फाइनर डिटेल्स, एक ओवरव्यू. देखिए, आज तक हम जो सीखते आए हैं ना, आई एम मेड अप ऑफ दिस बॉडी, दिस फ्लैश, देन द बोन्स, देन द फ्लूइड, देन द सॉलिड पार्ट, ये सारी चीज़ों को थोड़ी समय के लिए हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं. ठीक है, थोड़े समय के लिए हम साइड में रख देते हैं. लेकिन हमारे संस्कृति में, जो सांख्य की संस्कृति में, द वे we have told, what Sankhya says to us is, Kapil Muni expounds this. He says that
our entire universal system, okay, our entire universe is made up of 25 fundamental aspects. Okay, there are few people who don't understand Hindi. There are few people who are requesting that please speak in Hindi only. So, can't hear. Thank you. Can't hear clearly. जो है, just give me 1 minute. Okay, just give me 1 minute. हमें अपना वीडियोस ऑन करने की आवश्यकता नहीं है और अनम्यूट भी ना करें. आई थिंक नाउ दिस इज कंपैरेटिवली मोर क्लियरर. माय वॉइस इज लिटिल मोर ऑडिबल इज व्हाट आई थिंक सो. ठीक है. तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ मिक्स. यस, दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल है, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है. सो विल हैव टू डू दिस इन हिंदी एंड इंग्लिश. कृपया करके अपने वीडियोस को आप बंद कर सकते हैं. नो नीड टू स्विच ऑन द वीडियोस. जो स्लाइड है वही स्क्रीन पे रहेगी. ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से. तो आई वॉज यस, थैंक यू सो मच. तो मैं आपको ये बता रहा था कि सांख्य दर्शन के हिसाब से देखिए, जब हमारा स्पिरिचुअल सिस्टम की हम बात करते हैं ना, व्हेन वी स्पीक अबाउट आवर स्पिरिचुअल सिस्टम, तो हमारे मूल संस्कृति में इसके काफ़ी अच्छे आधार दिए गए हैं. बहुत बहुत सारे अच्छे आधार दिए गए हैं. और सांख्य दर्शन ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही महत्वपूर्ण आधार माना जाता है. तो उस आधार पर मैं आपको सर्वप्रथम जो एक ओवरव्यू है, हम किस तरीके से बने हैं, फर्स्ट हाउ इज द यूनिवर्स मेड अप ऑफ एंड हाउ एम आई मेड अप ऑफ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Okay, I'm requesting again, I'll have to myself close down your videos, requesting to everyone to shut your videos. राजेश जी, आपका वीडियो शुरू है. जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि वो आप वीडियो ऑन करेंगे ना तो वो मेरे स्क्रीन पे आ जाता है. धन्यवाद, थैंक यू सो मच. तो सांख्य हमें ये बताता है, सांख्य टेल्स अस दिस दैट our entire universal system, okay, listen to this very carefully, this is very interesting. Our entire universal system is formed of 25 fundamental elements. 25 मूल तत्वों के आधार पर ये बनाया गया है. ये मूल तत्व कौन से हैं? तो सर्वप्रथम जो तत्व है ना, उस तत्व को हम अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, which is the unmanifest form of nature. Now this unmanifest form of nature, ये योगिक प्रिंसिपल्स में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आधार माना जाता है. The yogic principle of nature, which is the prakriti, the avyakta prakriti, at some time it is said that when it comes in union with the purusha, when I say purusha, it is the fundamental element that is complementing the element of prakriti. तो इस समय पर क्या होता है, जब ये पुरुष और प्रकृति के मिलन में ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की काल की बात हो रही है. जो सर्वप्रथम जो तत्व की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं महत. ये जो महत तत्व है ना, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस. और योग शास्त्र में whenever we are doing any form of meditations, whenever we are doing any form of intrinsic studies, not external studies, any form of intrinsic studies, तो योग शास्त्र में या किसी भी वैदिक उपनिषदिक शास्त्र में इस महत्व का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्व समझा जाता है. तो ये महत्व क्या है? ये महत्व जो है, दिस महत्व इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल, दिस और द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस. दिस महत्व इज कॉल्ड एज, जो सारा क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस है इस यूनिवर्स में, ये इस महत्व इस शब्द से जाना जाता है. फिर इस महत्व से किसकी उत्पत्ति होती है? तो इस महत्व से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं बुद्धि. इसका अर्थ क्या है? जो मेरी इंडिविजुअल बुद्धि है, माई इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस एंड समवन एल्सेस इंटेलिजेंस, ये जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंसेस है ना, दे स्टार्ट फॉर्मिंग हियर. एंड व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स आउट ऑफ दिस इंटेलिजेंस इज अहंकार. Now, when I say अहंकार, we have to understand this one thing very clearly. जब मैं अहंकार की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि the pride, the feeling of pride that I have inside me is अहंकार. नहीं. सर्वप्रथम जो विचार है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ और मैं मन हूँ, ये जो विचार है ना, ये अहंकार का मूल है. This is the most fundamental source of the I, the ego I that we
कीप ऑन कैरिंग। और इसको जन्म देने वाला कौन है? तो इसको जन्म देने वाला जो होता है द वेरी प्रिंसिपल दैट इज देयर, ये जो तत्व रूप में, बहुत ही सूक्ष्म तत्व रूप में जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज द महत। जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है, महत जो है वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, और उसके बाद जो बुद्धि आती है वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है जो जन्म देता है अहंकार को। शास्त्रों में ये कहा गया है, आर स्पिरिचुअल सिस्टम, आर योगिक सिस्टम सेज दैट इन द वेरी बिगनिंग, ओके, एट द वेरी बिगनिंग ऑफ इटसेल्फ, जब कुछ भी नहीं था, जब किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं था, तब क्या था? 3 गुण थे विच वर इन इक्विलिब्रियम। When I say in equilibrium, they were living with each other in extreme harmony. There was no disharmony between these 3 gunas. What are these 3 gunas? The sattva, the raja and the tama. इसमें से जो सत्व है, what is sattva? Sattva is the pure gun of creation. Not creation, I will not call it as a gun of creation, but the pure gun of any pure form of activity or pure form of thought. तमा जो है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया। ओके, व्हाट इज तमा? तमा इज टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया। किसी चीज को अगर चलाए रखना है, इफ यू वांट टू सस्टेन समथिंग, व्हाट वी नीड इज सत्व। किसी चीज को अगर बंद करना है, किसी चीज को अगर रोक देना है, तो व्हाट वी नीड इज तमा। तो अहंकार के गुणों की वजह से अहंकार में कुछ ऐसा बदलाव हुआ जहां पे सत्व गुण, देखिए रजस से कुछ उत्पन्न नहीं होता हुआ दिखाई देता हमें। जब आप ये स्क्रीन देख रहे हैं ना, तो आप देखेंगे तो रजस से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि रज इज द फंडामेंटल तत्व और द गुण, नॉट तत्व। रज इज द फंडामेंटल गुण ऑफ क्रिएशन। इट इज द फंडामेंटल फोर्स। इट आइदर गिव्स फोर्स टू सत्व और इट गिव्स फोर्स टू तमा। वो या तो सत्व को शक्ति देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, या तो वो तम को ऊर्जा प्रदान करता है। और सत्व से जो क्या है, वो हमारे जो मन है उसकी उत्पत्ति होती है सत्व अहंकार से। जो मन की उत्पत्ति होती है, इसका अर्थ ये है मन का मूल तत्व जो है वो सात्विक अहंकार है, लेकिन अहंकार ही है। फिर जो हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय है, द 5 सेंसेस एंड द 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, पंच कर्मेंद्रिय। और फिर जब हम देखते हैं ये जो तम अहंकार है वो किसको उत्पन्न करता है, तो हमारे जो पंच महाभूत है, द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट आर एग्जिस्टिंग। ओके, ये कहाँ पर हैं, ये किस रूप में होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। योगी जन ये कहते हैं, those who have seen themselves, those the enlightened being, I am talking about the enlightened being, they say that the ordinary people have their consciousness stuck in the region or the domain of the Panchamahabhuta. Okay, but as and when you grow in your sadhana, any form of meditation practices that you do, any form of sadhana that you perform in your day-to-day life, your consciousness starts moving and taking charge of the Panchamahabhut. It doesn't only take charge of the Panchamahabhut, it slowly starts taking charge of every cause that leads to this tattva. For example, अगर तन मात्रा हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर, तो शब्द ये तन मात्रा है किसका, तो आकाश तत्व का। तो आप शब्द, ये जो तत्व है, यू स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी स्मॉल एग्जांपल्स। हमें ये सारी चीजें याद नहीं रखनी यहाँ पर। We just have to realize that what is really there within me, around me, ये सब जगह पे जो है ना, this entire universe. Similarly, it is not only the macrocosm. When I said this entire universe is made up in this form of these 25 building blocks, but my body itself, my existence itself is made up of these 25 building blocks. तो हमें ये 25 जो मूल तत्व है, जो किसी भी योग का आधार माने जाते हैं, इसको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस। एक बार जब हम ये मूल तत्व समझ जाते हैं ना, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमको समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। वो महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो देखिए, मैंने शुरुआत में क्या बताया आपको, ठीक है? हम धीरे धीरे अभी सूक्ष्म में जा रहे हैं। हमारे
when we saw the overview of what the universe and I myself am I made up of, now slowly we will enter into the subtle and the deeper elements of what my exactly as a human my spiritual system is made up of. We'll try to understand this. मैंने क्या कहा था यहाँ पर? इन ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य जनों में, जब हम सामान्य अवस्था में जीते हैं, when we live, when we are aware of all the regular things, what are we aware about? We are aware about our 5 sense perceptions. We are aware about our 5 regular actions, the karmendriya, gyanendriya. We are not even aware completely, okay? We are not even completely aware about our pancha mahabhut. हमको पता भी नहीं है कि वो अपने शरीर में कहाँ पर होते हैं, किस रूप में होते हैं, उसका मूल अस्तित्व किस प्रकार में होता है, ये भी हमें नहीं पता होता। लेकिन हमारी जो चेतना होती है, जिसे हम कहते हैं हमारी कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियसनेस दैट एग्जिस्ट, इट इज सेड टू बी स्टक एट द लेवल ऑफ द पंचमहाभूत। ये पंचमहाभूत क्यों? क्योंकि दिस इज द फाइनल मोस्ट point of evolution. This is the lower most. When I say final most, from Purush and Prakriti, the Pancha Mahabhut is the lower most point of evolution, and our consciousness is stuck at the lowermost point of consciousness of the entire the system of nature itself. ये हो गई नेचर की बात। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जब मेरी चेतना है, when my consciousness is, how does the journey of my consciousness happens? When I call myself as a human system, as a human spiritual system itself, how does the journey of that consciousness really happens? We will see that. इसको एक एक करके हमें जानना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? मेरा जो पूरा सिस्टम है ना, मेरी जो चेतना की अवस्था है, वो अलग अलग लेयर्स में या अलग अलग लेवल्स में होती है। मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, वो शास्त्रों के आधार पर ऐसा कहा गया है, शास्त्रों के आधार पर ऐसा कहा गया है कि I carry within me 5 different sheath, इसको शीथ्स कहते हैं, या वेदों के भाषा में, उपनिषदों के भाषा में इन्हें कोश कहा जाता है। तो मेरा शरीर जो है वो अलग अलग पंचक कोशों से बना हुआ है। तो ये कोश कौन से हैं? तो सबसे बाहरी जो कोश है, इसे मैं कहता हूं अन्नमय कोश। तो ये एक एक करके हम देखेंगे, और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये जो कोशों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ क्या है। पहले तो वी हैव टू फर्स्ट बिकम अवेयर ऑफ दीज कोशास, not just by listening but through our practices. One small request here, because this is not a professional link again. तो मैं सारे ग्रुप्स में जैसे ही 10 मिनट में ये लॉग आउट हो जाएगा, आई विल शेयर अ न्यू लिंक विथ एवरीवन, तो वापस हम इस पे कर लेंगे। आई थिंक ये जब लॉग आउट हो जाएगा उसके बाद में देयर इज ओनली अ 10-15 मिनट्स एंड क्वेश्चन आंसर सेशन दैट विल रिमेन आफ्टर आवर सेशन। सो प्लीज वापस आप लॉग आउट कर लीजिए लॉग ऑफ करने के बाद में। तो ये जो सबसे बाहरी कोश होता है, जिसके बारे में हम सब सजग होते हैं, उसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। इसके अंदर जो होता है वो होता है प्राणमय कोश। धीरे धीरे हम प्रत्येक कोशों के बारे में देखते चले जाएंगे। फिर इसके जो अंदर जो अगर हम जाएंगे तो कौन सा कोश होता है, जिसे हम कहते हैं मनोमय कोश। उसके भी अंदर जब हम और भी सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं, when we start going a little deep inside, there is a कोश within us which is called as विज्ञानमय कोश। और सबसे अंदरूनी जो कोश होता है, which is the most innermost connected कोश, जो हमारे सबसे अंदर का कोश है, उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। तो हम एक एक करके इस कोशों को देखेंगे, और सिर्फ इस कोशों की जानकारी ही नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे आज कि प्रत्येक कोश के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे जो विज्ञान है उसमें प्रत्येक कोश के लिए एक साधना बताई गई है। उस साधना को आज समझेंगे। कोई साधना हमें करनी नहीं है आज के दिन पे। we will just try to understand that see, this is first and foremost, we have to realize this. When I'm trying to evolve myself spiritually, okay, when I'm trying to evolve myself spiritually, what does it really mean? It means that it is the journey of my consciousness. Okay, from where? So first, if I see the first ever dimension of the journey of my consciousness,
This journey is from the outermost Annamaya Kosh, my physical body, and the Karak of my physical body, to the innermost Anandamaya Kosh. That is the first form of journey of my consciousness. There is one more journey of the consciousness which we will slowly see. If I speak the same thing in a little different dimension, okay? तो इसको हम अलग तरीके से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं यहाँ पर. तो हम एक एक करके प्रत्येक कोश के बारे में देखेंगे. तो पहला जो है ना, सर्वप्रथम जो कोश है हमारा, तो वो कौन सा कोश है? इसे हम कहते हैं हमारा अन्नमय कोश. तो ये कोश क्या है? जो मेरा स्थूल शरीर बना है, मेरे जो मैं अन्न खाता हूं और जो मैं द फूड दैट आई ईट and the transformation of the food that happens within my body. Okay, I eat it, it get digested, and slowly and steadily when it is broken out, it enters into each and every cell of my body, and what happens is I get energy. तो ये जो है ये मेरा शरीर है, लेकिन ये मेरा अन्नमय कोश नहीं है. कोश को समझना जरूरी है हमें. What is a kosh? See, a kosh is that तत्व, ये मूल तत्व के रूप में इसका अस्तित्व है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में अस्तित्व है, which supports our physical body. इसका अर्थ क्या है? Any activity, okay, any activity that is happening in my physical body, the fundamental reason, okay, the fundamental control is sitting inside the Annamaya Kosh. What is the difference? Why is the Annamaya Kosh not my body itself, and why is it separate from my body? Why is it in the form of a tattva? This Annamaya Kosh, in a form of a law or a principle, in a very sukshma or in a very, very subtle form, is actually controlling all the activities of my body. Now it is said that जब ये शरीर खत्म हो जाता है, ठीक है, ये संपूर्ण शरीर खत्म हो जाता है, शरीर नहीं बचा, प्राणवायु उसमें से निकल गया, सारी चीजें निकल गई, लेकिन आखिरी में जो चीज बचती है वो क्या बचती है? हमारे आत्मा के साथ ये पंचकोश बच जाते हैं. इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है. What remains even when we die, what remains along with the soul is this panchakosh. And whatever karma that I have done in this life, in my previous life, जो previous life के जो कर्म है, if it is expressed in this, I am cleaned of it. I have already cleansed myself of those karma. Then it is okay. But काफी सारे जो कर्म है जो मैंने इस जन्म में किए हुए हैं, कर्म in the form of thought, karma in the form of pure actions, the food that I have eaten, or any physical activity that I have performed, it stores into my Annamaya Kosh in an energy imprint form. Okay, it stores not in my body, it stores in my Annamaya Kosh in an imprint form. And when I die, this physical form of the body is gone, it is vanished. लेकिन जो अन्नमय कोश है ना, सूक्ष्म रूप में जो अन्नमय कोश है, वो मृत्यु के बाद भी यहाँ पर रह जाता है. तो ये जो साधनाएं है, देखिए इसको समझना है कि प्रत्येक जो साधना है ना, जहां कहीं पर भी कोई भी साधना हो रही हो, किसी भी प्रकार की साधना हो रही हो, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी खूबी से किया गया है. द एंटायर साइंस इज बेस्ड अपॉन दीज 5 कोशास. एंड व्हाट इज दिस साइंस? The science is that every sadhana, it either cleans Annamaya Kosh, or it cleans your Pranamaya Kosh, it cleans your Manomaya और विज्ञानमय कोश. इस प्रकार से प्रत्येक साधना जो है ना, वो अलग अलग तरीके में हमें सिखाती है और एक अंग से दूसरे अंग की ओर हमें जो हमारी चेतना का प्रवास है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा के लेके जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ अन्नमय कोश की बात करेंगे, जो हमारे संस्कृति में हमेशा कहा जाता था ना कि हमें उपवास रखना बहुत जरूरी है, कुछ जैसे आसन, बहुत सारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोग हैं जो स्वयं योगासन करते हैं. दे डू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आसन. तो ये जो आसन है, ये दिस इज द फाउंडेशनल प्रैक्टिस टू क्लीन आवर अन्नमय कोश. क्योंकि हम प्राणमय कोश की ओर तब तक पूर्ण तरीके से प्रवास नहीं कर सकते जब तक हमारा अन्नमय कोश पूरी तरह से स्टेबल ना हो जाए. ठीक है, इट डजंट हैव टू गेट 100% प्योर. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. साधनास आर वेरी लॉन्ग प्रोसेसेस. So the Annamaya Kosh does not have to get 100% pure, but it has to get 100% stable.
तो उसको स्टेबल करने के लिए काफ़ी सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे अलग अलग तरीके की तपश्चर्याएं हमारे उपनिषदों में, योग वेदों में बताई गई हैं। काफ़ी सारे उपवास अलग अलग तरीके के, ये बहुत कम तपश्चर्या मैंने बहुत जो हम ऑर्डिनरी लोग कर सकते हैं, ऐसे कुछ गिने चुने तपश्चर्या मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। I won't get into details of this tapasya. We can have longer discussions later on also. But these are very small tapas. Like for example, जो हम रेगुलर साधना करते हैं वो एक प्रकार की तपश्चर्या होती है। तो तप क्या है? तप का मैं आपको बेस बताता हूँ। ये अलग अलग 12 तरीके के जो तपश्चर्या है ना, हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन तप इस शब्द का अर्थ होता है अपने को तपाना। जब अपने में साधना से या किसी भी कर्म से जब ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारे अंदर स्पेशली दी अन्नमय कोश में, और सिर्फ अन्नमय कोश में ही नहीं तो बाकी सारे कोशों में जो सारे एनर्जी इम्प्रिंट्स होते हैं ना, दैट ऑल दोज एनर्जी इम्प्रिंट्स स्लोली एंड स्टेडीली गेट्स वैनिश्ड। मतलब वो हमारे कोशों से धीरे 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 निकल जाते रहते हैं। इसलिए व्हेन वी स्टार्ट रियलाइजिंग, कुछ सारे हम मनोमय कोश में जाएंगे ना, तो हमें ये चीज काफी अच्छी तरह से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अन्नमय कोश के बाद में जो हमारा कोश आता है वो क्या आता है? वो है प्राणमय कोश। ये जो प्राणमय कोश है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश ऑफ आवर सटल बॉडी। इसका कारण क्या है? देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्राणमय कोश की जो पोजीशन है ना, पोजीशन वेयर इट इज एग्जैक्टली सीटेड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। प्राणमय कोश कहाँ पर है? वो अन्नमय कोश के बाद में और मनोमय कोश के पहले है। इट इज सीटेड एग्जैक्टली बिटवीन द अन्नमय कोश on one side, on the outer side, and annamay kosh on the outer side, yes, and manomay kosh on the inner side. So it is sandwiched in between these two kosha. क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को और हमारे मन को जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस प्रकार से प्राणमय कोश में जो हमारे अंदर सूक्ष्म तरीके के जो बदलावों की आवश्यकता होती है, वो सतत होती रहती है। Not just once in an hour or once in a day or twice in a day. 24 hours in a day, there are certain transformative activities that keep on happening within the pranamaya kosh. And pranamaya kosh is the fundamental kosh which gives force to all the activities of the body and all the activities of the mind. अगर ये प्राणमय कोश जो है ना, अगर ये यहाँ से निकल जाए तो कुछ भी अस्तित्व में हमारा कोई भी एक्टिविटी होनी पॉसिबल नहीं होती। इट इज इम्पॉसिबल दैट एनी एक्टिविटी ऑफ द